بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ زم حریر کیا ہے؟ ایک بہت ٹھنڈی وادی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پھر جہنمی دعا کرے گا، اللہ مجھے ٹھنڈک سے بھلا اچھی تھی وہ جہنم کی آگ۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ صرف اتنا ہی مانگتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے ایک اور دعا اس میں ایڈ کرنا ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار جہنم۔ اس کے بعد ایک اور دعا آتی ہے جو زم حریر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، میں پڑھ کے الگ بھیجتی ہوں انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ما اشد بردن، برد ٹھنڈک کو بولتے ہیں، بہت شدید ٹھنڈک ہے۔ کب؟ ھذا اليوم، آج کے دن بہت ٹھنڈک ہے۔ اس کے بعد ہم مانگیں گے اللہم اجرنی من زم حریر جہنم۔ یہ دعا آپ یاد کراتی ہوں انشاءاللہ۔ یہ کب پڑھیں گے؟ جہنم جب بہت جل گئی، جہنم بہت جل گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اتنی آگ ہے کہ میں اپنے آپ میں پھٹ گئی ہوں، اپنے آپ میں ٹکڑے ہو گئی ہوں۔ آج آپ نے بخور کے لیے جلاتے ہیں، آگ کے ٹکڑے ہو کے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ یہاں کی یہاں بھی آگ ہوتی ہے۔ تو اس نے گزارش کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرا یہ حال ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ پہ کہتے ہیں دو سانسیں لے، دو سانس لے، دو سانس لے۔ سانس لیتی ایک اندر، میں اندر لی سانس، اب بھی لا، پوری اندر لا۔ کیا ہوا؟ اندر سب اندر چلا گیا، یعنی کہ کیا ہوگا؟ اندر چلا گیا تو گرمی پوری اندر چلی گئی، ٹھنڈک پھیل جائے گی دنیا میں۔ جہنم جب سانس اندر لیتی ہے، آج کی ٹھنڈی ایسی ہے ہڈیوں میں جا رہی ہے، یہ 8 دن سے ٹھنڈی ایسی ہے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، سارے سب کی ہڈیاں، دنیا میں بھی ہڈیاں توڑ رہی ہے، دنیا میں بھی ہڈیاں توڑ رہی ہے، مگر معلوم نہیں ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں، موسم کو گالی دے رہے ہیں۔ یہ بیور سی ٹھنڈی اتنی ہوگی ہماں، حالت خراب ہوگی ہماری، کب جاتی ہے کہ مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم، تو مجھے گالی نہ دے، تو مجھے گالی دے رہا ہے، یہ موسم میرا ہے، میں نے بنایا ہے، تو مجھ کو گالی دے رہا ہے، تو موسم کو گالی نہیں دے رہا ہے۔ زمانہ میرا ہے، زمانہ میرا ہے، زمانہ میرا ہے، زمانے کو گالی دے کے تو مجھ کو گالی دے رہا ہے۔ آئندہ یہ بات نہ کرو، اللہ سے پناہ مانگو، یہ دعا یاد کرو، یہ دعا یاد کر کے آپ دعا پڑھ کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، ورنہ جہنم کی آگ میں جا کر گرمی کے بعد ٹھنڈی بھی ڈال دیا جائے گا۔ سانس اندر لینے سے ٹھنڈی ہو گئی پوری دنیا، پھر اس کے بعد سانس باہر چھوڑتی ہے، ہاتھ میں سانس چھوڑو، ہاتھ چھوڑو، کیا ہوا؟ نکلی گرمی تمہارے سے، تم جہنم ہو؟ نہیں، انسان سے بھی گرمی نکال کے دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو دنیا میں ایسی گرمی آ جاتی ہے، ہم دبئی میں رہتے تھے، کئی لوگ مر جاتے تھے اے سی کے بغیر، جو ورکرز ہوتے ہیں جو بلڈنگز پہ 10-15 پہ کام کرتے کرتے گرمی میں کیا ہوتا، آج وہ مرا، آج وہ مرا، آج وہ مرا، آج اتنے مرے، آج اتنے مرے، مرتے رہتے ہیں گرمی کے دنوں میں۔ یہ گرمی سے یہاں پہ مر جاتے ہیں، وہاں کتنا برا حشر ہوگا۔ ہمارے پاس 2 موسم آتے ہیں، تو سردی کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سردی کا موسم ایمان والے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ اللہ کی محبت میں پورا وضو کرتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کو چھوتا ہے۔ ہم بچوں کو کیا، سو جاؤ، جان بخار آ جاتی، چھوڑ اب نماز نہیں پڑھ، نہیں۔ جو ٹھنڈ کے موسم میں روزے زیادہ رکھ لو، چھوٹا دن ہے، کتنا چھوٹا ہے، تھوڑی دیر میں مغرب ہو جاتی ہے، پورا قرض ادا کر لو، نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، مست روزے۔ گرمی کے دنوں میں ویسی حالت ہو جاتی ہے، نفسی حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹھنڈ کے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دگنا اجر ملے گا جو اچھا وضو بنائے گا۔ سن کے میں تب سے ذرا اچھا پانی گرانے لگی، میں اس سے پہلے ذرا یوں ذرا چوری کر لیتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل بہت ٹھنڈی ہے تو تھوڑا پوچھ لو اگر نہیں کر سکتے،
3 बार पानी नहीं ले सकते तो 1 बार तो पानी ले लिया करो. मैं गर्म पानी नहीं लेती, मैं गीज़र नहीं ऑन करती, उनकी अजर चला जाएगा. उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मर रहे थे, इंतकाल हो रहा था, आपने कहा जन्नत में चीज़ों को मैं बहुत खाऊंगा. एक रोज़ा और रहा ये पानी में वضو करना. गर्मी में गरम गरम खवलता हुआ पानी, टॉयलेट को हम जा नहीं सकते अरब में, उतना गरम खवलता पानी आता है. ठंडा इतना रहता है, टॉयलेट को ले नहीं सकते, वज़ू नहीं करते, हाथ में खाना बना नहीं सकते, हमें इतनी तकलीफ़ होती थी. आज मैं शुक्र करती हूँ तकलीफ़ नहीं है मुझे. पहले मैं बहुत पसंद करती, नहीं आना चाहती थी इंडिया में. आने के बाद 10 साल के बाद अक्ल आ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह जो देता है अल्लाह ताला सबसे बेहतर चीज़ देता है, हम शुक्र नहीं करते हैं. ठीक है, तो मौसमों का शुक्र करो, मौसम में अल्लाह ताला को याद करो, जहन्नुम को याद करो. जहन्नुम की सांस लेना, जहन्नुम की सांस छोड़ना, आपके जहन्नुम दहकती हुई आग में जलाया जाएगा या ठंडे बर्फ में डाल दिया जाएगा. क़ाल या नारु कूनी बर्दन सलामुन अला इब्राहीम. इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अब हमें ये सब पढ़ते हैं, समझ नहीं आएगी जब तक अल्लाह ताला समझाएंगे नहीं. तो आग भी इतनी ना हो कि जल जाएं, ठंडक इतनी भी ना हो कि आप आग ठंडी कर दें, ठंडी इतनी भी ना कर दें कि वो ठंडे पड़ जाएं. ये दो भी जहन्नुम की अलामत है, अजाब है. ये खबर मैं आपको लाके सुनाना था. आप कितने लोगों को नहीं मालूम था? हाथ उठाइए, मेहरबानी गुजारिश, हाथ उठाओ. ये ठंडक के बारे में जहन्नुम का पूरा हाथ उठाओ प्लीज. काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है, तो ऑनलाइन भी किसी को मालूम नहीं होगा. ये अल्लाह ताला अगर रास्ता दिखाते हैं, मुझे और आपको चुन के ये चीज़ें बताकर हमें समझाते हैं. तो प्लीज़ ज़माने को गाली देना छोड़ो, वुदू बनाओ, रोज़े रखो, इबादत करो, खाना खिलाओ. आज इतनी बातें हम सुने, किसी को कुछ दो तो शुक्रिया बोलो जी, इतना भी नहीं कहा जी, ज़रा जज़ाकल्लाह भी नहीं बोलते जी, ऐसी बातें नहीं करो. कोई शुक्राना बोले नहीं, हमें नहीं चाहिए, मैं आखिरत में अल्लाह ताला दे, हम आखिरत के लिए करें. आप भी ऐसा ना करें, आप भी किसी को भी ना बोलें. ठीक है, ये बातें हो गई. जहन्नुम के दरवाज़ों के कितने नाम हैं? 7 नाम हैं. आपको या मिस्टेक के लिए 7 के नीचे आ जाना. ओके, 7 हैं. कौन सा है नंबर 1? नंबर 1 कौन सा है? अब मुझे सूर्य की कनेक्टिंग से आप बोलना पड़ेगा. ओके, ओ नहीं आपको आता है, आप पढ़ते हैं, अम्मा जुज़ में ही आ जाता है. वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा. वो आलिम जो तौरात में लिखते थे, आसान चीज़ों को हटाकर, जैसे पत्थर मारो लड़की अगर हराम करी वो छुपा देते थे, ऐसे बाकी चीज़ें छुपा देते थे. अब अभी भी कई आलिम कई चीज़ें छुपा देते ना, ये चीज़ें बताते हैं, अजाबों को बताते नहीं. बा हमारे पास पढ़ना आना बंद कर डालती, हमें नहीं बयान कर सकते, इतना कुछ ज़्यादा बोले तो आते च नहीं बाओ नो. कोई बात नहीं, चले जाएं, पूरे आसमान की फरिश्ते भर के आ जाएंगे, आपसे मेरे से बेहतर आएंगे. हक बात बयान करने से जो रुकता है वो कुफ्र करता है. कुफ्र करने वाला कहाँ जा रहा है? जहन्नुम में जा रहा है. जो शुक्र करने वाले को अल्लाह ताला अपने हाथों से शराब दे रहे हैं. ठीक है, तो वाइल तो हम गीबत ना करें, खराबी ना करें, कुरान की बातों को ना छुपाएं, कुरान की बातों को जाहिर करें. करेंगे तो जहन्नुम का वैल ऐसा है, वैल इतना बड़ा गड़ा है, आग के पहाड़ ले जाके रखेंगे उसके अंदर तो आग फट जाएगी. आग ऐसी है कि फट जाएगी. ऐसा डर है कि मेरे सीने में फट रहा है. हमने भी गुनाह किया है ना, हम भी गुनहगार हैं ना. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह माफ़ कर दिए, हम सबको माफ़ कर देंगे. आग फट जाएगी, टुकड़े टुकड़े बन के माउंटेन उड़ जाएगा. जहन्नुम की आग पनाह मांगेगी आग से, अल्लाह मुझे इस आग से बचा ले, तू आग पूछेगी. ये ऐसी वैल हम गीबत करेंगे, ज़बान से चुगलियाँ करेंगे, इतनी बड़ी. हम छोटे गुनाह समझते हैं, ये बहुत बड़े गुनाह हैं. अल्लाह का वास्ता देती हूँ, कोशिश करके छोड़ो, कोशिश करके छोड़ो,
कोशिश करके छोड़ो. मैं बच्चियों को देखो कितना मैं करती हूँ, नहीं अकेले में बात करती हूँ, समझाती हूँ, जरा टाइम देती हूँ. मैं माँ हूँ बेटा, तुम्हारी बैठो जरा बात करो, माँ के साथ ऐसा नहीं करो, कल तुम्हारे बच्चे ऐसे करेंगे, आज तुम जवाब दोगे कल तुम्हारे बच्चे जूता लेके मारेंगे. आज जो करे हो तुम्हारे साथ आ रहा है. किस किस के बच्चे अच्छे हुए हाथ उठाए इंशाअल्लाह. किस किस के बच्चियाँ अच्छी हो गई हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. बच्चे किसके आपके दीन पे आने के बाद किस किस के बच्चे फलानी दुआ में सही हो रहे हैं, किस किस के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह का कलाम ऐसा शिफा है, अशिफा है. तो यही बात है, वैल में ना जाओ, वैल में ना जाओ. कोई भी गीबत करता है तो याद दिलाओ, वैलुली. देख माँ तुझे ऐसा बोली, माँ उन्हें वो तो वो है नहीं, उन्हें कम की नहीं, तेरे पीछे इतना बोल कर हाँ मैं बोलती हूँ, तेरे सामने कितनी अच्छी रहती है ना, कितनी अच्छी है. देखो जरा अच्छी उर्दू बोलना पड़ता है कि पड़ोस के वतन में जा रहा है, वो पाकिस्तान में 25% 30% वो लोग भी सुन रहे हैं. अल्लाह कबूल कर लें अल्हम्दुलिल्लाह. उनको समझ नहीं आएगी हमारी, फिर समझ में हम लोग क्या कहते हैं. देखो वो कितना कितना तेरे बारे में बुरा बोलती है पीछे, तेरे सामने तो कितनी मीठी मीठी है. ये गलत काम ना करो. देख के मुस्कुरा के दुआ कर दो, अल्लाह इसको हिदायत दे. आज ही मैं किसी को देख रही थी, फुल मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके. औरत कह रही थी कुछ, मुझे नाम का कुछ ज़रूरत थी तो मैंने चेक कर रही थी. तो औरत कह रही थी जहन्नम है, जहन्नम में डाला जाएगा, बड़ी आज़ाब है, बड़े आज़ाब में डाल दिया जाएगा. इसको नहीं डालेंगे, मेकअप करे तो नहीं डालेंगे, फोटो का रस दिखाने से नहीं डालेंगे. समझ के पढ़ना. यूट्यूब में नाम कमाने के लिए काम नहीं करना, यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना. मरने के बाद का एक स्टोरेज समझ के रखना, जाने के बाद का सामान समझना. अब पूरा सच के जहन्नुम बोलना क्या फायदा. मैं क्यों काम कर रही हूँ दीन में. इंस्टा से इतनी नफरत थी, वो क्या अलीफ बात मालूम नहीं था. वो 2 बच्चे पकड़ के सिखाए, फिर ये बच्ची पकड़ के सिखाए. बच्चे पकड़ के बोलते बाजी तुम इसमें करो, बाजी इसमें फैलाओ, इसमें ज़रूरत है, बाजी इसमें तुम्हारी ज़रूरत है. बोलिए मैं जाऊँगी तो कहीं नंगे पुंगे दिखेंगे, गुनाह होगा ना. नहीं बाजी तुम ऐसे नहीं जाओ, बस यहाँ पे रह जाओ. फिर दुआ करके खोलती हूँ, अल्लाह ये खोल रही हूँ, गुनाह का रास्ता ना तो खोल दे मेरे लिए, इसमें ना इतना ही मुझे करा जितना मेरे करने में मेरी आफियत है. बोल के खोलती हूँ, ऐसा ना मैं भटक जाऊँ कहीं उसमें. समझ में आ गया. आप बच्चियाँ क्या करते हो, भटक के खोल के देखते रहते हो, एक के बाद यहाँ मुस्कुरा रहे हो. सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है. हाँ नहीं किया करो, वक्त जा रहा है. ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो. वैल में नहीं जाओ, वैल में नहीं जाओ. ये दुनिया एक गड़ा है, गौर से देखो. ये घर फाउंडेशन नीचे गड़ा है, ये एक गड़ा है. राइट. एक झाड़ पेरने के लिए मैं गड़ा खोदती हूँ. राइट. एक झाड़ पेरने के लिए मैं गड़ा खोदती हूँ. एक महल बनाने के लिए एक गड़ा खोदा जाता है. झोपड़ी के लिए थोड़ा कम गड़ा खोदा जाता है, घर के लिए उससे ज़रा ज़्यादा खोदा जाता है. 100 मालों के लिए 100 अंदर खींचा जाता है. उतना गुनाह होता है, ज़रा गौर से देखना. ओके. फिर खाना पकाने के लिए शतल का गड़ा लेना पड़ता है, शतल में खाना डालना पड़ता है. वो भी एक गड़ा है, वो भी एक जहन्नुम है. जिसको ईमान का खाओ, ईमान का खिलाओ, वो भी गड़ा है. अब देखो तुम खबर में मुर्दे को डालने के लिए जाओ, उसको भी गड़ा खोदना पड़ता है. वो भी जहन्नुम. किसके लिए, बदकार के लिए. नेकोकार के लिए खिड़की खोल दी जाएगी, खिड़की खोल दी जाएगी. हर चीज़ के लिए गड़ा है. नोट करके दे, तुम्हारे आंखों के लिए अल्लाह ने गड़ा बना के रखा हुआ है, तुम्हारे कान के लिए देखो एक गड़ा बना के रखा है, पेट को देखो एक गड़ा बना के रखा है. हर चीज को शर्मगाहों का गड़ा बना के रखा हुआ है. हर चीज गड़े हैं, हम घिरे हुए हैं गड़ों में. गड़ों से निकलो, गड़ों से निकलो, गड़ों से निकलो. बालों को देखो गड़े के अंदर ठोसा गया है. जहन्नुमी को ऐसा ठोसा जाएगा जैसे कपड़े में सुई की नोक को ठोसा जाता है, ठोस के सिलाई लगाई जाती है, ऐसे जहन्नुमी को ठोसा जाएगा, ठोसा जाएगा. कितने साल तक, 40 साल तक पहाड़ चलता रहेगा. जहन्नुम का पहाड़ चढ़ना पड़ेगा. जहन्नुम का अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार 40 साल तक पहाड़ चढ़ना पड़ेगा. जैसे उतर के आएगा फिर अल्लाह कहेंगे फिर चढ़.
हुक्म हो जाएगा, पहाड़ों को ना चढ़ो। आज अपने अपने गुरूर के पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, अपने गुरूर के पहाड़ों पे जा रहे हैं। आज हम रियाकारी के पहाड़ों पे जा रहे हैं। हम गढ़ों में नहीं हैं, हम रियाकारी में हैं। हम ऊपर ऊपर देख के चलते हैं, हम निगाह को नीचे नहीं रख के नहीं चलते। मर्दों को देख के बात करते हैं, नीचे रख कर नहीं बात करते हैं। मर्दों को मोहब्बत से कभी खूबसूरत है तो लड़कियां देख के दोस्तियां कर लेते हैं, दोस्तियां कर लेते हैं लड़कियां। क्यों देखते हैं? आंखों से गड़ा, जहन्नुम का गड़ा खोदा गया है। आप अपना गड़ा खुद से खोल रहे हो। होठों को रस लगाकर, लिपस्टिक लगाकर मुंह के अंदर आग खिलाई जाएगी, ये गड़े में डाल दिया जाएगा, मुंह के गड़े में डाला जाएगा। जहन्नुम के गड़े से बचने के लिए, खबर के गड़े से बचने के लिए मौत तो एक दिन आनी है। आज ही कह रही थी अल्लाह, वो कपड़े बेचने वाला एक बंदा आवाज़ देता था, वो कपड़े वाले की आवाज़ कई ज़माने से नहीं आ रही। अच्छा बशर था, अखलाक थे, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर दे। मैं भी एक दिन मर जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी ना अल्लाह ताला, एक दिन मेरी भी आवाज़ दे रहेगी। ये आवाज़ मैं दीन के लिए बेच रही हूँ, पैसे के लिए नहीं। मैं मर गई तो ये रह जाएगा, मैं मर गई तो कोई ढूंढेगा, कोई तो उसमें ग्रुप में मिल जाएगा। सबसे गुजारिश करती हूँ प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको चाहिए तो करें, नहीं चाहिए मेरे मरने के बाद ख़त्म हो जाए चैनल तो आप ना करिएगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, देना मेरा रब देगा, अब देगा, अब देगा, अब फरिश्ते लाके देंगे, अब आसमान से देगा, अब जमीन से मेरा रब देगा, अब फरिश्ते लाके देंगे, कोई इंसान के हाथ से देगा। मुसब्बल असबाब है वो, औलाद से हर चीज का हर रिज़्क़ वो देता है। भरोसा करो अपने रब के ऊपर। आमाल छोड़ जाओ, या आमाल छोड़ के चले जाओ, या आमाल छोड़ो, गढ़ों से निकलो, जहन्नुम के गढ़ों से निकलो। रात को उठो, अंधेरे में उठो, वजू करो, टीवी डाल के मूड ऑफ हो गया नहीं बैठो, थोड़ी देर जिक्र करो, थोड़ा बयान सीख लो, किसी को मदद करो। अगर तुम्हारा दिल पढ़ने नहीं हो रहा है, जिक्र करते हुए गाड़ी अपनी उठाओ, जाओ, देखो सुबह शाम पहाड़ पे जाओगे, पहाड़ तुम्हारा जिक्र करेंगे, बोलेंगे अल्लाह वाला जा रहा है। झाड़ तुम आप जिक्र करो, वो जिक्र करेंगे। ये आज मैं कभी निकल जाती हूँ, अल्लाह इन सारे झाड़ों का अजर मुझे दे दे, इन पहाड़ों का अजर मुझे दे दे, इन पहाड़ों का अजर मुझे दे दे, इन इंसानों का अजर मुझे दे दे। किसी को देने से पहले नियत करती, मैं अजर की नियत करती हूँ, अल्लाह मुझे अजर तो दे दिया कर प्लीज़। हम गड़े ही गड़े में हैं। एक पर्स में पैसे रखने के लिए वो भी गड़ा है, जेवर रखने के लिए वो भी एक बक्सा गड़ा है, कपड़े रखने के लिए एक अलमारी गड़ा है, फ्रूट्स रखने के लिए एक फ्रिज गड़ा है, पॉटी करने के लिए गड़ा है। गड़ा कहाँ नहीं है? हम गड़ों के ऊपर फिक्र नहीं करें, गड़ों को हमने देखा नहीं है, हम भूल गए हैं। हम दुनिया इतनी की समझ के रह गए हैं, हमें जाना है। अल्लाह से दुआ करें आफियत के साथ रखें। शौहर नहीं है, शौहर नहीं है, कोई बात नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं। आज शुक्र करोगे तो पिलाएंगे शराब अपने हाथों से, अल्लाह ताला अपने हाथों से शराब पिलाएंगे। इतनी बड़ी शराब से बड़ी कौन सी शराब है? इतनी बड़ी कामयाबी से बड़ी कौन सी कामयाबी है? अल्लाह ताला हम अपने आप को संवारें। आज एक टॉपिक पे ख़त्म करती हूँ, अपने आप को संवारें। मैं भी संवरती हूँ, क्यों? अगर शौहर मर गया तो भी सवरूंगी, जिंदा है अभी भी सवर रही हूँ। सवर के हो गया बिस्मिल्लाह, ज़ाबा ज़माऊ वबतलतल रूहु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। रोजदार डालो उसमें, कौन कौन रोजा है उनकी बॉटल्स में डालो। ये सब रो, खतरा पानी डाल के खामोश बैठ जाना, खाना कोई तकसीम नहीं करना प्लीज। एक खतरा मुंह में डाल के बैठ जाना, नहीं तकसीम, नहीं नहीं तकसीम। अदब हमारे में आ जाए, मरने के बाद कोई याद तो करे, वो अदब कराना सिखा के चली गई। ठीक है, जो रोजदार है खतरा पानी डाले बैठ जाए। अपने आप को संवारो, चेहरे को संवारो, कुछ लेप वेप लगाओ, कुछ भी करो, खूबसूरत बना के रखो।
कान में जो भी है पहनो, अच्छे कपड़े पहन के वजू बना के अल्लाह ताला के पास खड़ो, दिखाओ कितना हसीन हमें बनाया है, क्या क्या नेमतें हमें दिया है, हर नेमत का शुक्र अदा करो। कभी जेवर पीतल है तो पीतल पहन के, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक पहन के, मिट्टी का है तो मिट्टी का पहन के, हीरा है तो हीरा पहन के, सब छोड़ के जाना है, कुछ साथ आने का नहीं। जब तुम अल्लाह को प्रेजेंट अच्छी तरीके से करोगे, अल्लाह ताला कुरान करीम में कहते हैं मेरे पास आओ तो जीनत के साथ आओ। कैसे आओ? जीनतों के साथ आओ का मतलब सजावट के साथ आओ, तो अल्लाह ताला क़यामत में अपने आप को 2 मर्तबा दीदार कराएगा, एक फजर को, एक असर मगरिब को। अल्लाह का दीदार पाना है, अल्लाह ताला की बातों पे अमल करो। अब उंगली उठी है तो उंगली की एक बात में ख़त्म कर लूँ, क्योंकि अल्लाह ने उंगली उठाने का भी मकसद होता है। नमाज में हम तशद्दुद में हम फ्लैट रखते हैं, उठाते सिर्फ अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पे है, ये साबित नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह साबित नहीं है। साबित का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं है। कहा है उंगली उठाएं अत्तहियात से, अत्तहियात से उंगली उठाएं और हरकत करते रहें, बीच में अशहदु अन्ना पे भी ना उठाएं। यस, बीच में अशहदु अन्ना पे भी ना उठाएं। सब अब मैं करती हूँ, मैं ऐसा रखी हूँ, मैं शुरू करी हूँ, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि बरकातहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतल फिरदौस औज़ु बिका मिनन नार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जितना जो पढ़ो तब तक हरकत करो, उंगली को ऊपर नीचे अप एंड डाउन नहीं करो, सिर्फ हल्की सी हरकत करो, बीच में भी उंगली को पूरा ना, एक ही बार उठ गई आखिर तक वही उंगली है। ये लिखा साबित है, दलील सही बुखारी सही मुस्लिम में। चाहिए तो मैं पकड़ के फ़ोटो भेजो तो अभी भेजती हूँ, या यकीन रखते हैं तो आप खुद जाके टच कर लो। कोई सवाल? मुझे ऐसी मजलिस में बाहर से आती ना सलाम कर पाना, बात कुरान की चलती रहती है, सबका तवज्जो आपके पास आता है, हमें बाहर से सलाम आपको सलाम करने की बात की, सलाम करके इतना जोर से ना करें, आदाब आदाब है। और कुछ सवाल? हरकत क्यों करते हैं, क्यों, कहाँ, चूं, चा, ये हमारे सवालात होते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर मक्कातुल मुकर्रमा में आपको नमाज सिखाई गई, वो तरीका जो अल्लाह ताला ने भेजा है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये उंगली जो हरकत होती है आपके दिल को कनेक्ट होती है, और आपका बॉडी पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, शैतान को भी मारने का आला है। जब आप दलील देते हैं अशहदु अन्ना, तो उससे बड़ी उसको कोई मात नहीं है। उंगली उठाते थे ना, नहीं उठाना, नहीं उठाना। अब बताई ना, फिर बोलूं मैं, फिर कंफ्यूज हो गए, फिर कहती हूँ अत्तहियातु, देखो मेरा हाथ फ्लैट है, मेरे जान के ऊपर ये मेरा हाथ फ्लैट है, ओके। अत्तहियातु पे मैं उंगली उठा लेती हूँ। ऐसा भी 2-3 तरीके हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तीनों कर सकते हैं, वो पूरे हैं, पूरा दलील है, कोई बात नहीं, एनीथिंग, सब दलील है, मैंने चेक कर चुकी हूँ, ठीक है। कुछ भी उठा के ऐसा यूँ हल्की सी हरकत करते रहते, पूरा आखिर तक यही है, फिर बाद में यूँ नहीं उठाना। अब देखो इसकी दलील मैं बताती हूँ आपको, समझाने तक आपको ज़रा छोड़ती हूँ, उसके बाद पकड़ती हूँ, भाग ना जाएं आप लोग इस वजह से, ठीक है। ऊपर उठाती हूँ तो ऊपर अल्लाह ताला की तरफ जाएगा, उंगली ज़रा उठती है तो काबा रुक जाएगा, हम इबादत काबा रुक कर रहे हैं।
ہم کعبہ رخ کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایسے اٹھاتے، کسی کو دیکھا ایسے ہلاتے ہوئے؟ نہیں نا، کعبہ رخ. میت کو جب سلایا جاتا ہے تو پورا فلیٹ نہیں سلانا، سر کے پاس تھوڑا سا اونچا کرنا. ایک پوائنٹ بتا کے ختم کرتی ہوں. سر کو تھوڑا اونچا کرنا تاکہ میں میت انشاءاللہ میرے کعبے میں مر کے میرا لاشا جب پڑا رہے گا تب میں میت جب ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میرا سر کوئی آ کے ذرا اٹھا دے، یا مرنے سے پہلے میرا سر ایسا کر دے تاکہ میں تیرے کعبے کی طرف میرا جسم ہو جائے. اوکے، سوتی رہوں پھر اسے ذرہ اٹھیں گے تو کعبے کا رخ ہوگا. میت کس کے بھی گھر میں ہوگی، کوئی بھی رشتہ دار، تھوڑا سا سر فلیٹ ایسا جو ہوتا ہے ذرہ یوں اٹھانا. مجھے دیکھو یوں ہوتا ہے تو اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں، ذرا یوں ہوتا ہے تو کعبہ رخ ہوتا ہے. اوکے، یہ بھی سنت، ایک ایک سنتوں کو بیان کرتی ہوں تاکہ آسان ہو جائے. نماز کا کلیئر ہو گیا، ختم کرتے ہیں، اذان ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.